Hello, good morning student. This video is for class 8th student, subject science. Now we study about chapter 7, microorganism, friend and foe. What is microorganism? Dear student, we see different types of organism around us, but we can't see many types of organism by our naked eyes. So this type of organism are called microorganism. Micro means very teeny. By microorganism we can't see by naked eyes, only we can see by microscope. We should always use the microscope to see the microorganism. In other words, we can see also microbes. Before it, we study what is micrology, the branch of science that deals with the study of microorganism. When we study about the microorganism in branch of science, then it is called micrology. There are various types of microorganism, but before it we can study microorganism present around us, even in our body. In our body also present microscope, on our body also present, and also around us. There are various types of microorganism: virus, bacteria, protozoa, algae, fungus, etc. At first, we study about virus. Virus is a connecting link before living and non-living organism, because virus when are outside the body, then they can't reproduce, do not need food to grow. But when any virus enter any type of animal, then it reproduce, it need food to grow. So always virus is considered as a link between living and non-living things. Dear student, you already know about what is living things and what are non-living things. So let's now we study about bacteria. There are various types of bacteria around us. Out of them, some are very useful for our body and some are very harmful for our body. Then after protozoa are ascent type of organism. First ascenter organism is protozoa, then after algae and fungus. When algae and fungus live together, then they make lichen, and lichen is the example of symbiosis. Then after, at first we study useful of microorganism. Yeah, it means there are many uses of microorganism. At first, making curd, bread, cake, idli, etc. We use microorganism. It means the process of making curd from milk is called a lactobacillus process. By lactobacillus bacteria, we can make curd from milk. When some amount of sour materials add with milk, then it changes into curd, and this bacteria is called lactobacillus bacteria. And in milk, which acid is present? Lactic acid. And lactic acid is very beneficial for our body. Then after, in medicines, for making medicines, also bacteria means all types of microorganisms are used. In antibiotics, there are many types of antibiotics: aspergillus,
and many types, and vaccine also. Vaccine are used in tuberculosis, malaria, typhoid, etc. Then after cleaning environment, to clean environment we also use the microorganism. Then after in industry, in big industry we use also microbes, means microorganism, to produce alcohol, wine, vinegar add in food items, and wine and alcohol you already know about it. Then after in agriculture, for producing manure and fertilizers we always use microorganism. Now before it we study what is virology. Virology means the branch of science in which we study about virus. Now dear student, we want to explain in हिंदी. देखिए अपन इस चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीवाणु. सूक्ष्म जीवाणु मीन्स अपन अपनी जो नेक्ड आईज होती है, जो अपनी फेस टू फेस जो आईज होती है, उससे अपन कभी भी इनको नहीं देख सकते. यानी वो बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं, बहुत टीनी होते हैं. उनको देखने के लिए अपन को किसकी आवश्यकता पड़ती है? माइक्रोस्कोप की. और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी अपन साइंस की जिस ब्रांच के अंदर करते हैं उस ब्रांच को बोला जाता है माइक्रोलॉजी. अब अपन स्टूडेंट क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये अपने चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा अपनी बॉडी के अंदर और बॉडी की जो सरफेस होती है उसके ऊपर भी होते हैं. अपनी जो पाम है, अपनी जो हथेली है, उसके ऊपर 1000 लेग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं. बट वी कांट सी, अपन देख नहीं सकते. अब देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, एल्गी है, फंगस है. ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. इनमें सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं कि वायरस क्या होता है. वायरस जो होता है उसको अपन बोलते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच की योजक कड़ी, यानी कनेक्टिंग लिंक. ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब कोई भी वायरस अपनी बॉडी, यानी अपनी बॉडी नहीं, किसी भी एनिमल की बॉडी के बाहर होगा तब ये नॉन लिविंग थिंग होगा. क्योंकि ये न तो रिप्रोड्यूस कर सकता है, न इसको ग्रोथ करने के लिए फूड की आवश्यकता होती है, न इसको ब्रीथिंग के लिए एयर की आवश्यकता होती है. वो एक्ट एज ए नॉन लिविंग थिंग्स, वो बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग्स की तरह वर्क करता है. बट वो किसी भी वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, किसी भी थ्रू से अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तब उसमें मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू हो जाता है. उससे क्या होता है कि उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है. इसलिए वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग यानी सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी बोला जाता है. देन आफ्टर आता है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया होते हैं वो भी अपने जो अपन बोलते हैं बैक्टीरिया बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर बैक्टीरिया मोस्टली यूज में लिए जाते हैं. इसके अलावा अपना कर्ड को मिल्क से कर्ड बनने की जो प्रोसेस होती है उसमें भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं. इसके अलावा प्रोटोजोआ, जो सबसे आदिम टाइप का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोटोजोआ होता है. जैसे ये यूनिसेलुलर होते हैं मोस्टली. आपको बता रखा है सेल के अकॉर्डिंग एनिमल्स होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है मल्टीसेलुलर और एक होता है यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म विच है ओनली सिंगल सेल. जो सिंगल सेल रखते हैं उनको बोला जाता है यूनिसेलुलर. जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है. और मल्टीसेलुलर अपन है जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स पाई जाती है. और अपन ने इसके बारे में भी स्टडी की थी कि हु डिस्कवर्ड सेल. In 1665 रॉबर्ट हु डिस्कवर्ड द सेल. और सेल होती क्या है? अपनी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? सेल. इसके बारे में अपन पढ़ते हैं एल्गी और फंगस. एल्गी और फंगस ये भी क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. और जब ये दोनों एक साथ जीते हैं तब उसको अपन क्या बोलते हैं? लाइकेन, जो कि बेस्ट एग्जांपल होता है सिम्बायोसिस का. उसके बाद में अपन स्टडी करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनके बेनिफिट क्या है. तो सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं मेकिंग कर्ड, ब्रेड, केक, इडली. यानी जो भी फर्मेंटेशन
कि प्रोसेस से कोई भी फूड मटेरियल तैयार होता है तो उसमें क्या यूज में लिए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका बेस्ट एग्जांपल अपन डेली लाइफ में यूज में लेते हैं कर्ड, जो कि मिल्क से बनता है। उसके लिए बेनिफिशियल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, क्योंकि मिल्क के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, इसलिए लैक्टिक एसिड होता है वो मिल्क से किसमें, इसको कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा जो अपना केक होता है, जो ब्रेड होती है, इनके अंदर भी अपन क्या यूज में लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा मेडिसिन के अंदर भी इसको मोस्टली यूज में लिया जाता है। जो वैक्सीन बनाते हैं, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, जो वायरल जैसे अपने कोई ऐसे हो जाती है, कोई वायरल वगैरह ऐसी डिजीज हो जाती है, उसके अंदर जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं। देन आफ्टर आता है क्लीनिंग एनवायरनमेंट। अपना जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करने के अंदर भी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये हेल्पफुल होते हैं। कैसे, आपको बता रखा था कि कोई भी काऊ बफेलो ऐसे डेड हो जाते हैं तो उनको कहीं पे गिरा देते हैं, तो वहाँ पे जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो धीरे धीरे उनको सोइल में डिकम्पोज कर देते हैं। इसके अलावा आता है इंडस्ट्री, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होते हैं उनके अंदर जो एल्कोहल है, वाइन है, विंजर है, इनको प्रोड्यूस करने के अंदर भी किसका यूज में लिया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन आफ्टर एग्रीकल्चर, अपनी एग्रीकल्चर के अंदर अपने स्टडी की थी इससे बिफोर चैप्टर के अंदर कि बहुत सारे टाइप्स के मेन्यूर और फर्टिलाइजर्स यूज में लिए जाते हैं। उन मेन्यूर और फर्टिलाइजर्स को यूज में लेने के लिए भी अपन क्या यूज में लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Okay, now we study about the harmful effect of microorganism. Now we study about harmful effect of microorganism. It means before it we study about the beneficial of microorganism, but now we study harmful microorganism. It means many types of microorganism are harmful for human and animals also. Disease causing microorganism in human are virus, protozoa, bacteria, fungus, algae, etc. Some are. Before it, there are two types of disease. First is communicable disease. The disease which are spread from person to person. It means is from sick person to healthy person. It is spread by air, water, insect, animals, etc. Second is non-communicable disease. Non-communicable disease can't spread from person to person. It means it is already remain in a sick person. From sick person it can't spread in a healthy person. Now spreading factors are air, insect, animals, water. It means from contaminated water, air, insect, animals, it can spread from person to person. It means from healthy person, from sick person to healthy person. There are disease. First is virus from virus. Which types of disease are spread? Common cold, chicken pox, smallpox, measles, polio, rabies. These diseases are spread only from virus. Rabies, from rabies, hydrophobia disease. It means the rabies person fear from water, and polio from polio virus, and common cold, chicken pox, smallpox, measles. All types of disease are spread from virus. Then are bacteria. Bacteria disease spread cholera, typhoid, tuberculosis, plague. These disease spread from bacteria. Then after protozoa. One disease spread from protozoa is malaria. And malaria always fuse from female anopheles, mosquito, density, sleeping sickness. And then after fungus, ringworm. Mostly ringworm is spread from fungus. Now student, we want to discuss in Hindi. देखिए अपन ने इसके जो फायदे पढ़े थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, अब अपन इसके नुकसान देखते हैं। तो ये जो मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीज फैलाते हैं।
बट इससे पहले अपन पढ़ते हैं कि जो बीमारियां होती है 2 टाइप्स की होती है। एक कम्युनिकेबल का मतलब होता है संक्रामक और नॉन कम्युनिकेबल का मतलब होता है असंक्रामक। संक्रामक का मतलब होता है कि वो एक स्वस्थ पर्सन के अंदर जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है वहां से उसमें बीमारी चली जाती है, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है कि वो पर्सन टू पर्सन नहीं स्प्रेड होती है। जैसे कैंसर होती है, ये हमेशा जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसी के अंदर रहती है, लेकिन जो वायरल वगैरह होते हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज आते हैं, जो कि एयर वाटर के थ्रू एक हेल्दी पर्सन के अंदर स्प्रेड हो जाती है। फिर अब ये डिजीज होती है वो वायरस से कौन कौन सी होती है, वो कॉमन कोल्ड जो सामान्य सर्दी जुकाम होती है, इसके अलावा चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, मिजलस है, पोलियो है, रेबीज है। ये जो बीमारियां होती है मोस्टली किससे होती है, वायरस से होती है। वायरस जैसे कि रेबीज होती है वो जो डॉग है, कैट है, बैट है, इनके बाइट करने से होती है। नाउ है बैक्टीरिया, जो कोलेरा, हेजा, जिसको सामान्य लोकल लैंग्वेज में अपन हेजा बोलते हैं, टाइफाइड जो मियादी बुखार होती है, इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस जो होती है, टीबी होती है, ये जो बीमारियां होती है वो होती है बैक्टीरिया की वजह से। जो ट्यूबरकुलोसिस होती है वो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो कोलेरा बैक्टीरिया की वजह से ये होता है। इसके अलावा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से मेन जो बीमारी होती है वो होती है मलेरिया, और ये मलेरिया होती है मॉस्किटो के बाइट करने से होती है, और मॉस्किटो भी मेल नहीं फीमेल मॉस्किटो के होने से होती है। डेंसिटी का मतलब होता है कि अपनी बॉडी के अंदर वीकनेस हो जाती है, वाटर वगैरह की कमी हो जाती है, बार बार जैसे अपने लूज मोशन वगैरह होते हैं, वोमिटिंग होती है, वो प्रोटोजोआ की कंटामिनेटेड फूड वाटर इंटेक करने से। इसके अलावा स्लीपिंग सिकनेस का मतलब होता है जब इंसान नींद में हो तब भी उसमें क्या होती है, ऐसे सिकनेस यानी कमजोरी सी फील होती है, वो भी एक प्रोटोजोआ के कारण होती है। लास्ट फंगस के कारण मोस्टली रिंगवर्म का मतलब होता है दाल, यानी अपनी जो स्किन से रिलेटेड जो डिजीज होती है वो हमेशा फंगस की वजह से होती है। लास्ट वन है कि जो फूड मटेरियल्स होते हैं उनको अपन किस तरीके से सेव कर सकते हैं। इसके लिए कि अपन को कोई भी फूड आइटम अपन यूज में लेते हैं उनको माइक्रोब से हटाने के लिए अपन को सनलाइट में उनको ड्राई करना चाहिए, और यदि कोई पिकल वगैरह, अचार वगैरह, तो उनके अंदर अपन को ऑयल और साल्ट ऐड कर देना चाहिए, विंजर ऐड कर देना चाहिए। इसके अलावा अपन को उनको स्मोकिंग देनी चाहिए। इसके अलावा अपन को इस जगह पे स्टोर करना चाहिए जहाँ पे किसी भी टाइप की कोई मॉइस्चर न हो। सो स्टूडेंट, योर चैप्टर इज कंप्लीट। आई थिंक यू स्टडी एट होम दिस चैप्टर। सो थैंक्स, स्टे होम, स्टे सेफ।